Welcome to Animal World Documentary Yuzufu. Please subscribe. Thank you. کینگرو کی کئی اقسام ہیں جو آسٹریلیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی چند اہم اقسام درج ذیل ہیں۔ ریڈ کینگرو یہ دنیا کا سب سے بڑا کینگرو اور آسٹریلیا کا سب سے بڑا زمینی جانور ہے۔ ریڈ کینگرو کا رنگ سرخی مائل بھورا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر آسٹریلیا کے خشک اور نیم خشک علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نر ریڈ کینگرو کی لمبائی 1.8 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ ایسٹرن گرے کینگرو یہ کینگرو آسٹریلیا کے مشرقی حصوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا رنگ سلیٹی مائل بھورا ہوتا ہے۔ یہ ریڈ کینگرو کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا کینگرو ہے۔ ایسٹرن گریا کینگرو اکثر جنگلات اور کھلی جگہوں میں رہتے ہیں۔ ویسٹرن گرے کینگرو یہ کینگرو زیادہ تر مغربی اور جنوبی آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ ویسٹرن گریا کینگرو کا رنگ بھی بھورا ہوتا ہے اور اس کا سائز ایسٹرن گریا کینگرو سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ اینٹیلائن والارو کینگرو اور والابی کے درمیان کی نسل ہے۔ اینٹیلائن والارو شمالی آسٹریلیا کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور یہ اپنے لمبے اور پتلے جسم کی وجہ سے اینٹلوپ کی طرح دکھتے ہیں۔ والابی کینگرو کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں اور زیادہ تر جنگلات، پہاڑی علاقوں اور ساحلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ والابی کی کئی اقسام ہیں جیسے راک والابی اور بروش ٹیل والابی۔ ٹری کینگرو یہ ایک منفرد قسم کا کینگرو ہے جو زیادہ تر درختوں میں رہتا ہے اور پاپوا نیو گنی اور شمالی کوئنزلینڈ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ ٹری کینگرو کی ساخت مختلف ہوتی ہے اور یہ عام کینگرو کی نسبت درختوں پر چڑھنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ یہ کینگرو کی چند مشہور اقسام ہیں اور ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات اور رہائش کا ماحول ہوتا ہے۔ کینگرو بنیادی طور پر جڑی بوٹی خور ہربیورس ہوتے ہیں، یعنی وہ پودوں پر منحصر رہتے ہیں اور سبزے کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں۔ مختلف اقسام کے کینگرو مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی خوراک کا انحصار ان کے ماحول پر ہوتا ہے۔ خوراک کی اقسام گھاس کینگرو زیادہ تر نرم اور تازہ گھاس کھاتے ہیں، خاص طور پر ریڈ کینگرو اور گریا کینگرو کو گھاس پسند ہوتی ہے، پتے اور چھال۔ کچھ کینگرو جیسے والارو اور والابی جھاڑیوں کے پتے اور کبھی کبھار درختوں کی چھال بھی کھاتے ہیں۔ پھل اور بیج کچھ کینگرو جیسے ٹری کینگرو جنگلاتی علاقوں میں پھل اور بیج کھاتے ہیں۔ جڑیں اور کلیاں خشک علاقوں میں پائے جانے والے کینگرو پودوں کی جڑیں اور کلیاں بھی اپنی غذا کا حصہ بناتے ہیں۔ غذا کی تلاش رات کے وقت چارہ تلاش کرنا کینگرو عموماً رات کے وقت صبح سویرے اور شام کو چارہ تلاش کرتے ہیں کیونکہ دن کے وقت گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ خشک علاقوں میں بقا کینگرو خشک اور نیم خشک علاقوں میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں جہاں پانی اور خوراک کم ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوراک سے ہی پانی حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر ریڈ کینگرو جو کم پانی والے علاقوں میں بقا کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بصری اور سونگھنے کی حس کینگرو اپنے تیز بصری اور سونگھنے کی حس کے ذریعے چارہ ڈھونڈتے ہیں اور وہ اپنی غذا کو تلاش کرنے کے لیے دور تک سفر کر سکتے ہیں۔ خوراک ہضم کرنے کا عمل کینگرو کے معدے کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ ان کے معدے میں 4 چیمبر ہوتے ہیں جو انہیں گھاس اور سبزے کو بہتر طریقے سے ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح کا نظام انہیں بہت کم پانی کے ساتھ طویل عرصے تک زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ 4 موسمی خوراک کینگرو اپنی خوراک کا انتخاب موسم کے حساب سے کرتے ہیں۔ جب خشک موسم ہوتا ہے تو وہ کم پانی والی سخت پودوں کو بھی کھا لیتے ہیں اور بارش کے موسم میں زیادہ تازہ اور رسیلی سبزہ کھاتے ہیں۔ کینگرو کی خوراک ان کی بقا اور ماحولیاتی حالات کے مطابق ڈھل جاتی ہے اور ان کی صلاحیتیں انہیں آسٹریلیا جیسے مشکل ماحول میں بھی زندہ رہنے کے قابل بناتی ہیں۔ کینگرو کے بچے جنہیں جوئی کہا جاتا ہے کی پیدائش اور ان کی پرورش کا عمل منفرد اور دلچسپ ہے۔ یہ پیدائش کے بعد اپنی ماں کے تھیلے پاؤچ میں پرورش پاتے ہیں جو کہ کینگرو کی سب سے خاص خصوصیت میں سے ایک ہے۔ پیدائش کا عمل کینگرو کا بچہ بہت ہی چھوٹا اور نازک ہوتا ہے۔
पैदाइश के वक्त जोई की लंबाई तकरीबन 2 सेंटीमीटर होती है, जो 1 मटर के दाने के बराबर है, और उसका वजन तकरीबन 1 ग्राम होता है। पैदा होने के फौरन बाद जोई अपनी मां के थैले की तरफ खुद चढ़ता है, क्योंकि इस वक्त उसके पांव और बाजू निस्बतन मजबूत होते हैं। चूंकि जोई इस वक्त पूरी तरह से नशोनुमा नहीं पाता, इसका जिस्म बिल्कुल नापुख्ता होता है और वो थैले के अंदर मजीद तरक्की और परवरिश पाता है। तो थैले में परवरिश मां के थैले में पहुंचने के बाद जोई मां के दूध पीने के लिए थैले में मौजूद दूध पिलाने वाले वदूद से मुंसलिक हो जाता है। जोई तकरीबन 6 माह तक थैले में ही रहता है, जहां वो मुसलसल दूध पीता है और उसकी जिस्मानी नशोनुमा होती है। इस दौरान इसके जिस्म पर बाल आना शुरू होते हैं और आंखें खिलना शुरू होती हैं। 6 माह की उम्र के बाद जोई थैले से बाहर निकलना शुरू करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बाहर रहने के काबिल नहीं होता। वो कुछ वक्त बाहर गुजारता है और फिर वापस थैले में चला जाता है। 3 थैले से बाहर निकलने का वक्त जोई तकरीबन 8 से 10 माह की उम्र में थैले से निकलकर बाहर रहने लगता है, लेकिन वो अब भी अपनी मां के दूध पर इन्हिसार करता है। इस दौरान भी अगर इसे खतरा महसूस हो या इसे आराम करना हो तो वो वापस थैले में चला जाता है। जब जोई तकरीबन 1 साल का हो जाता है तो वो थैले में वापस जाना कम कर देता है और खुद से चारा तलाश करने और खाने लगता है। 4 दूध की फराहमी का हैरत अंगेज निज़ाम। दिलचस्प बात यह है कि मां कैंगरू एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ किस्म के दूध पैदा कर सकती है, एक जोई के लिए जो अभी थैले में है और दूसरा बड़े बच्चे के लिए जो थैले से बाहर है। यह कुदरती निज़ाम मां को एक वक्त में मुख्तलिफ उम्रों के बच्चों की परवरिश करने के काबिल बनाता है। 5 जोई की बका और हिफाजत मां का थैला न सिर्फ बच्चे की परवरिश के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि ये जोई को शिकारियों और माहौल के खतरात से बचाने के लिए भी काम करता है। थैले के अंदर जोई महफूज रहता है और उसकी जिस्मानी नशोनुमा मुकम्मल तौर पर होती है। कैंगरू का ये मुनफरिद तौलीदी और परवरिश का अमल उन्हें दूसरे ममालिया जानवरों से मुमताज़ बनाता है, और जोई की जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा इस थैले में गुजरता है, जो उसके लिए कुदरती हिफाजती और परवरिश का मकाम होता है। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया की सकाफत, तारीख और मुआशरत में बहुत अहम किरदार अदा करता है और ऑस्ट्रेलिया की कौमी शनाख्त की अलामत समझा जाता है। इसकी अहमियत को मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जा सकता है। 1 कौमी अलामत कैंगरू ऑस्ट्रेलिया के कौमी निशानात में शामिल है। ये ऑस्ट्रेलिया के कौमी कोट ऑफ आर्म्स, ऑस्ट्रेलियन कोट ऑफ आर्म्स में ईमी के साथ मौजूद है, जो मुख की तरक्की और आगे बढ़ने की सलाहियत की अलामत है, क्योंकि कैंगरू पीछे नहीं हटता बल्कि हमेशा आगे बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी निशान सिकवी और सरकारी दस्तावेजात में भी कैंगरू को नुमाया मकाम हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन क्वांटस का लोगो भी कैंगरू पर मबनी है, जो मुख की हवाबाजी की सनत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। 2 सियाहत और माशी अहमियत कैंगरू ऑस्ट्रेलिया की सियाहत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह ऑस्ट्रेलिया आते हैं और कैंगरू को देखने के लिए मुख्तलिफ सफारी टूर्स और पार्क्स में जाते हैं। कैंगरू की मकबूलियत न सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी है, और इसे देखने के लिए आने वाले सयाहों से ऑस्ट्रेलिया की मईशत को काफ़ी फ़ायदा होता है। सकाफती वर्सा और कदीम आबादियों की अहमियत ऑस्ट्रेलिया के कदीम कबाइल और एब्रिजिनल कम्युनिटी में कैंगरू को एक मुक़द्दस जानवर समझा जाता है। उनके अकायद और रवायात में कैंगरू की कहानियाँ, गाने और आर्ट शामिल हैं। अबरजनी लोग कैंगरू को खुराक, कपड़े और औजार के लिए इस्तेमाल करते थे, और अब भी बाज़ इलाकों में उनके लिए ये अहम ज़रिया है। 4 स्पोर्ट्स और लोगोस कैंगरू ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स टीमों का लोगो है, जैसे कि कौमी रग्बी लीग की टीम, जिसका नाम ही कैंगरूज है। कैंगरू की शक्ल का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकामी और बैन अल-अक़वामी खेलों के मुकाबलों में किया जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स कम्युनिटी का अहम हिस्सा है। 5 अदब और मीडिया में किरदार कैंगरू ऑस्ट्रेलवी अदब, कहानियों और कार्टून्स में भी एक अहम किरदार अदा करता है। बच्चों की किताबों, कहानियों और एनिमेशंस में कैंगरू को अक्सर मरकजी किरदार के तौर पर दिखाया जाता है। फिल्मों और टीवी शोज़ में भी कैंगरू की नुमाइश की जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया की सकाफती पहचान को मज़ीद मजबूत बनाता है। 6 माहौलियाती और हिफाजती अहमियत कैंगरू ऑस्ट्रेलिया के हयातियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। उनकी आबादी के इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मंसूबे और पॉलिसियाँ बनाई गई हैं ताकि उनकी बका को यकीनी बनाया जा सके। कुछ इलाकों में कैंगरू की तादाद में इजाफे की वजह से ज़रूरी मसाइल पैदा होते हैं,
जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकारी इक़दामात किए जाते हैं। इसके बावजूद कैंगरू की अहमियत इनफरादी और कौमी सतह पर बरकरार है। साथ मसनूआत और ब्रांड्स ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू की तस्वीर मुख्तलिफ मसनूआत जैसे कि लिबास, तहाइफ और दीगर ब्रांडेड अशिया पर इस्तेमाल होती है। ये ऑस्ट्रेलिया की अलामत के तौर पर बैन अल-अक़वामी मार्केट में बहुत मकबूल है। 8 खेलों के मुकाबले और जश्न, कैंगरू डांस और दीगर रिवायती खेल कैंगरू से मुतासिर हैं, जो मकामी सकाफत का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ त्योहारों में पेश किए जाते हैं। कैंगरू न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कुदरती विरासत का हिस्सा है, बल्कि इसका सकाफती और मुआशरती किरदार भी बहुत अहम है। ये ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए फ़ख्र, शनाख्त और कुदरती वर्से की अलामत के तौर पर हमेशा नुमायां रहेगा। कैंगरू को जंगली हयात में मुख्तलिफ खतरात और शिकारियों का सामना होता है। अगरचे कैंगरू अपने बड़े साइज और तेज़ रफ्तार की वजह से कुछ हद तक महफूज होते हैं, फिर भी वो कुछ कुदरती और इंसानी अवामिल के तहत खतरात में घिरे रहते हैं। कुदरती शिकारी डिंगो डंगो ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में पाया जाने वाला जंगली कुत्ता है, जो कैंगरू के अहम शिकारियों में शुमार होता है। डंगो आम तौर पर कैंगरू के बच्चों और कमज़ोर अफराद को निशाना बनाते हैं, क्योंकि बालिग कैंगरू खुद को तेज़ छलांगों से बचा सकते हैं। उकाब, ईगल्स उकाब खास तौर पर कैंगरू के बच्चों को शिकार बनाते हैं, जो कभी कभार ज़मीन पर कमज़ोर हालत में मिल जाते हैं। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स शुमाली ऑस्ट्रेलिया के बाज़ इलाकों में जहां कैंगरू पानी के करीब जाते हैं, मगरमच्छ उन पर हमला कर सकते हैं। तो इंसानी अवामिल से खतरात, शिकार और तिजारत। बाज़ इलाकों में कैंगरू का शिकार किया जाता है, ख़ास तौर पर उनके गोश्त, खाल और दीगर मसनूआत के लिए। अगरचे कैंगरू की कुछ अक़साम के शिकार पर पाबंदी है, मगर बाज़ सूरतों में उनकी बढ़ती हुई आबादी की वजह से उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी समझा जाता है। कारों के हादसात ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू के कार हादसात एक आम मसला है, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब कैंगरू सड़कों पर आते हैं। ये हादसात न सिर्फ कैंगरू बल्कि इंसानों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ज़मीन का इस्तेमाल और काश्तकारी। ज़मीन की तरक्की और काश्तकारी के फैलाव की वजह से कैंगरू के कुदरती मस्कन मुतासिर हो रहे हैं। जंगलात की कटाई और ज़री ज़मीन के बढ़ने से उनके रहने की जगहें कम हो रही है, जिससे उनकी खुराक की कमी और बका का खतरा बढ़ जाता है। 3 माहौलियाती अवामिल, खुश्क साली और पानी की कमी। ऑस्ट्रेलिया के बाज़ खुश्क इलाकों में कैंगरू को खुश्क साली की वजह से खुराक और पानी की कमी का सामना होता है। इस सूरत हाल में वो तवील फासले तक सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से वो थकावट और भूख से मुतासिर हो सकते हैं। आग और जंगलात की तबाही। जंगलात में लगने वाली आग, बुशफायर्स, कैंगरू के लिए बड़ा खतरा होती है। आग से उनके मस्कन तबाह हो जाते हैं और कैंगरू अपनी जान बचाने के लिए जिदोजहद करते हैं। माहौलियाती तब्दीली। मौसम में तब्दीली और बढ़ती हुई गर्मी कैंगरू की बका के लिए चैलेंजेस पैदा कर रही है। पानी की कमी और खुश्क साली के बढ़ते हुए वाक़यात कैंगरू की आबादी को मुतासिर कर सकते हैं। 4 बीमारियां और सेहत के मसाइल। बीमारियां और पैरासाइट्स। कैंगरू को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना हो सकता है, जैसे कि पैरासाइट्स, जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाज़ सूरतों में उन बीमारियों की वजह से उनकी आबादी में कमी भी देखी जा सकती है। फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे। बाज़ किसान कैंगरू को अपनी फसलों के लिए ख़तरा समझते हैं और उन्हें अपने खेतों से दूर रखने के लिए इक़दामात करते हैं, जिसमें कैंगरू को हलाक करने के तरीक़े भी शामिल हो सकते हैं। 5 आबादी का इंतज़ाम। कुछ इलाकों में कैंगरू की आबादी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उन्हें कुदरती वसाइल की कमी का सामना होता है। इसके नतीजे में सरकारी हुक्काम बाज़ औक़ात कैंगरू की आबादी को कंट्रोल करने के लिए शिकार और नक़ल मकानी जैसे इक़दामात उठाते हैं। 6 शिकारी पर काबू पाने की हिकमत अमली। खुद को बचाने की सलाहियत। कैंगरू तेज़ छलांग लगाने और लंबी दूरी तय करने की सलाहियत रखते हैं, जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद देती है। उनकी पिछली टांगें मजबूत होती हैं और वो अपने पंजों का इस्तेमाल दिफा के लिए भी कर सकते हैं। 7 तहफ़्फ़ुज़ और बका की कोशिशें। कैंगरू की आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में कई कुदरती पार्क और महफूज इलाके बनाए गए। इन मंसूबों का मकसद कैंगरू की रहाइशगाह को बचाना और उनकी बका को यकीनी बनाना है। कैंगरू को कुदरती और इंसानी अवामिल से कई खतरात का सामना है, लेकिन उनकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं, ताकि ये नायाब और मुनफरिद जानवर हमेशा जंगली हयात का हिस्सा रह सके।